Again, a very warm welcome to all of you, बच्चों. Then today again I am making video for you of numericals based on resistivity. Okay, so let's start that one. A piece of wire of resistance 20 ohm is drawn so that its length increases to twice its original length. Calculate new resistance. Okay, तो the things given resistance है दिया हुआ आपका 20 ओम. ओके, लेंथ मान लेते हैं L है L1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है. ओके, देन रेसिस्टेंस हो जाएगा. फॉर्मूला फॉर रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L1 बाय A1. देन ये आपका हो गया. रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ गिवन 20 ओम. 20 इज इक्वल टू रो L1 बाय A1. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. Now, when the length increases to twice its original length, then new length will become twice the original one. So हम लोग मान लेते हैं new length L2 is equal to 2L1 and twice original length, and it is not given. It is drawn so that its length increases to twice its original length. तो length हो गया 2L1 new length. Then area of cross section will become half because the same wire is drawn. We have to pay attention on the language of the question. So a new area of cross section A2 will become A1 by 2. Okay, so putting this thing in formula again, R is equal to R2, we can write R2 is equal to rho 2L1 by A1 by 2. So ये हो जाएगा आपका 2 इंटू रो L1 बाय A1, और ये 2 भी ऊपर चला जाएगा 2, तो ये आपका हो गया 4 रो L1 बाय A1. ओके, एंड ये रो L1 बाय A1 किसके बराबर है? 20 के बराबर. ओके, ये इक्वेशन 1 से जो ओरिजिनल रेसिस्टेंस था 20 और वो किसके बराबर था? रो L1 बाय A1 के. तो इस रो L1 बाय A1 की जगह हम लोग 20 पुट कर देते हैं इंटू 20. ये आपका कितना हो गया? 80 ओम. सो न्यू रेसिस्टेंस विल बिकम 81. Children, I think it would be clear to you all. This type of questions are given in NCERT. So this first one we did. अब देखिए दूसरा क्या है आपका? A cylinder of material is 10 centimeter long and area of cross section 22 centimeter square. Its resistance is 20 ohm. What is its resistivity? Length of the cylinder is L is equal to 10 centimeter. रहने देते हैं इसको सेंटीमीटर में ही. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 centimeter square. Okay, resistance is given how much? 20 ohm. ठीक है, तो what we have to find? Its resistivity. Children, we can get its resistivity in SI unit also. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? इस लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना होगा. इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को we will have to convert to meter square. तो if you want you can solve like this in CGS unit also. तो रेसिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला हो गया रो इज इक्वल टू R A अपॉन L. तो R का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका? 20 ओम. 20 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 बाय L 10. तो 10 2 जा यानी कि हो गया 4 ओम सेंटीमीटर. ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा
2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर विल बी कैंसिल एंड वी विल बी लेफ्ट विथ 4 ओम सेंटीमीटर। बच्चों तो हमको लग आई थिंक सो कि यू वुड बी क्लियर अबाउट ऑल दिस। तो और few questions again more we will solve, and then we will I think we will have the better grip of this one. Okay, so practice more and more so that you can solve without any hesitation, without any distraction. So let us do the more questions on this one. And so the next question we have this one. What should be the length of nichrome wire of resistance 4.5 ohm if the length of similar wire is 60 centimeter and resistance 2.5 ohm? So given things are what? Length है 60 centimeter and resistance कितना है 2.5 ohm. Okay, so what should be the length of nichrome wire of resistance 4.5 ohm if the length of similar wire is 60 centimeter? अब हम लोग निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका 60 सेंटीमीटर। देन रेसिस्टिविटी पहले निकाल लीजिएगा, आर ए अपॉन एल से। आर कितना दिया हुआ आपका 2.5 ओम, 2.5 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग। लेंथ है आपका 60 सेंटीमीटर। देन ये हो गया रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर, गिवन वायर, ठीक है। रेसिस्टिविटी आर ए अपॉन एल, ठीक। अब कहता है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ नाइक्रोम वायर ऑफ रेसिस्टेंस 4.5 ओम if the length of similar wire is 60 centimeter and resistance 2.5 ohm। अब क्या करते हैं, न्यू रेसिस्टिविटी निकालिएगा। न्यू लेंथ मान लेते हैं हम लोग L1 जो कि निकालना है। तो L1 तो रेसिस्टिविटी तो सेम है, रो इज इक्वल टू वो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ नाइक्रोम रेसिस्टेंस 4.5 ओम है, तो 4.5 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। देन वी हैव टू फाइंड लेंथ। तो अब देखिए रो का वैल्यू यहाँ से, बिकॉज द मटेरियल इज सेम तो रेसिस्टिविटी सेम होगा। अब क्या करते हैं, इस रो की जगह ये रखिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन दिस वन, फॉर्मूला दिस वन, 4.5 इंटू ए बाय एल इज इक्वल टू 2.5 इंटू ए बाय 60। ए कैंसिल कर दीजिए। देन एल इज इक्वल टू हो गया हमारा 4.5 इंटू 60 बाय 2.5। डेसिमल कैंसिल, 5 5 जा 9 5 जा 12, देन हो गया 108। क्या लिखिएगा लेंथ में, सेंटीमीटर में 108 सेंटीमीटर। ओके, तो आप क्या देख रहे हो कि रेसिस्टेंस जब ज़्यादा है देन लेंथ बिकेम, वी हैव टू टेक द वायर ऑफ मोर लेंथ, यानी कि 108 सेंटीमीटर हो गया। बच्चों तो इसमें हमने क्या एक वायर है जिसका लेंथ दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है। अब उसी मटेरियल का बना हुआ दूसरा वायर है जिसका रेसिस्टेंस 4.5 ओम है, ठीक। तो उसका हमको क्या निकालना है, लेंथ है निकालना है कि कितना लेंथ हमें चाहिए उतना रेसिस्टेंस के लिए। तो हमने क्या किया, पहले गिवन वायर का जो रेसिस्टेंस दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ, उसका रेसिस्टिविटी हम लोगों ने निकाल लिया। अब सेम रेसिस्टिविटी दूसरे वाले जिसका हमको लेंथ निकालना है उसका भी होगा, इसलिए
हम लोगों ने क्या किया, रो की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया, देन वो लेंथ का वैल्यू हमें निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपका है, कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, 0.4 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड रेसिस्टेंस 2 ओम। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है हमारा, लेंथ है 1 मीटर, डायमीटर 0.4 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, देन यू विल गेट 0.4 बाय 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करेंगे, तो देन वी विल गेट 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर डायमीटर हो गया आपका। क्योंकि डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, देन वी विल गेट दैट वन। ये हो गया डायमीटर एंड रेसिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है, आर का वैल्यू इज ऑल्सो गिवन 2 ओम। निकालना क्या है, रेसिस्टिविटी ना, तो रो इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, आर ए अपॉन एल। आर का वैल्यू दिया हुआ आपको 2 और ए निकालना है, तो ए के लिए फॉर्मूला क्या हो गया आपका, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू तो 22/7 हो गया, इंटू आर स्क्वायर की जगह हम लोग ये, अगर इसको रेडियस डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस हो जाएगा आपका कितना, आर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -4, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर यहाँ कर देते हैं, इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है 1 मीटर, देन आफ्टर कैलकुलेशन we will get what, 44 into 4 into 10 to the power -8 डिवाइड बाय 7। अब 7 से डिवाइड करके we will get resistivity in ohm meter. In ohm meter we will get its resistivity. Okay children, you will solve this one, then you will get the answer. Okay, so I think all the things would be becoming clear to you. So the questions I am solving in my videos for you also, and my interest is also there because this is my channel. I am working for this one. Due to that, I will expect from you all that work hard, study with me, so that the things can become more clear to you. Okay, so let's solve a few more questions. So we have the next question now. Calculate area of cross section of a wire if its length is 1 meter, its resistance is 23 ohm, and resistivity of material is this much. So the given things, first we will write L 1 meter, R 23 ohm, एंड रो का वैल्यू दिया हुआ है 1.84 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। देन क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो फॉर्मूला इज देयर, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो ए के लिए हो जाएगा रो एल बाय आर, आपका हो गया 1.8 10 टू द पावर -6 into length 1 by r 23. So बच्चों solving this one we will get the resistance of the wire. ठीक है, sorry, area cross section of the wire we will get after solving this one. अब देखिए ये क्या है, a metal wire of resistivity इतना ओम सेंटीमीटर and the length is this much, has resistance 7 ohm. Calculate radius. Okay, तो अब हम लोग पहले रेडियस निकालने के लिए क्या कीजिएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेते हैं, देन वी विल गेट रेडियस। ओके, तो गिवन थिंग रो इज इक्वल टू 64 इंटू 10 टू द पावर -6, लेंथ दिया हुआ है 198 सेंटीमीटर एंड 198 सेंटीमीटर, एंड
7 ohm. रेसिस्टेंस इज गिवन R इज इक्वल टू 7 ओम. हम लोग इसको वैल्यू निकालना क्या आपको, रेडियस ऑफ वायर. देन R इज इक्वल टू रो L बाय A फॉर्मूला लगाते हैं. R का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 7 इज इक्वल टू रो का वैल्यू 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. L 198 सेंटीमीटर. तो 198 सेंटीमीटर 198 रख देते हैं, बिकॉज बच्चों ये रेसिस्टिविटी हमारा ओम सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो लेंथ को भी हम लोग 1 सेंटीमीटर में ही छोड़ देते हैं. देन एरिया क्रॉस सेक्शन ए निकाल लेते हैं. तो ए का वैल्यू हो गया आपका 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 198 डिवाइड बाय 7. Okay, after solving this one we will get the value of A. उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद हम लोग A का वैल्यू पता हो जाएगा. देन A के लिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर. इससे आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल के we will get the value of R. Okay, so its answer will be its answer is चलिए इसका आंसर हो गया 0.024 सेंटीमीटर. और इसका आंसर ये है. यू विल सॉल्व देम मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आई लेफ्ट ऑन यू. यू विल सॉल्व सो दैट यू कैन हैव बेटर प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस. So 6 questions we did in this video. Children, 2 more questions I am trying to do and you practice on them better. Okay. So children, we have next question number 7. Calculate amount of charge that would flow into hours for an appliance to draw a current of 0.25 ampere. Okay. तो गिवन वैल्यू I कितना दिया हुआ 0.25 एम्पियर. टाइम दिया हुआ 2 आवर्स. इसको क्या कीजिएगा सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं. 2 इंटू 3600 सेकेंड. देन ये फॉर्मूला क्या हमारा I इज इक्वल टू Q अपॉन T. तो Q का वैल्यू निकालिएगा I इंटू T. I 0.25 इंटू T 7200 सेकेंड. मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 1800 कूलम. Okay, so that is simple one. Now next one, the potential difference across the terminal of a heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere. Given क्या है 60 volt. पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट. करंट का वैल्यू दिया हुआ है I का वैल्यू 4 एम्पियर. देन व्हाट करंट इट विल ड्रॉ. पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट. तो अब क्या करते हैं इसका हम लोग रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं. देन वैल्यू ऑफ R निकाल लीजिएगा. R इज इक्वल टू V बाई I से V है 60 बाय I का वैल्यू है 4. तो ये हो गया कितना 15 ओम. रेसिस्टेंस हो गया हीटर का 15 ओम. अब देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है. देन व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन. नाउ न्यू पोटेंशियल डिफरेंस V1 है 220 वोल्ट. R का वैल्यू हमारा है 15 ओम. देन I का वैल्यू निकालना है. न्यू करंट I1 इज इक्वल टू V इंटू R. I इज इक्वल टू V बाई R. V का वैल्यू हो गया 2
20 बाय r का वैल्यू हो गया 15। So children, now the current drawn will be 220 by 15, 44 by 3 ampere. Okay, so many questions we have solved on the topic, till the topic resistivity, Ohm's law, current के value से, potential difference वाले formula से. Now in next video we will solve numericals based on combination of resistances. Okay children, so thank you for watching. If you go on practicing with me, that will help you a lot. So respect for my hard work. Thank you for watching. So all the best for your practice. Thank you so much.